All right, it's now time to move on to our next panel discussion. Can we have a round of applause for our concluding panel? Thank you, Kapil. Thank you, Shireen and Jashmina, for being a part of this. It was lovely to have you discuss so many important topics. सो इस डिस्कशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठकर आया है जो कि मार्केटिंग के ऊपर है और ये हम दोबारा से आगे डिस्कस करेंगे इन आवर सेशन ऑन मार्केटिंग. फिलहाल हम मुड़ते हैं डेटा मैनेजमेंट की तरफ. सो ऑप्टिमाइजिंग योर सैलून एंड बिजनेस परफॉर्मेंस and using data and technology and why it is important for modern salon business is the topic for our next discussion. In today's digital clutter, how to make your brand stand out in a marketplace where the customer is spoiled for choice, how to ensure that your brand has a better recall and you get repeat footfall. We will look at answers to these questions and many more about using data for your salon and services and in understanding your customer in this panel discussion. My first panelist for this session is Mr. Akshay Puri. He is the co-founder of Ding, a comprehensive software platform designed to cater specifically to the needs of salon, spa, and beauty clinic industry. Welcome, Akshay. Can we have a round of applause for Akshay? Akshay's journey in entrepreneurship began with a clear mission to empower and streamline the operations of beauty and wellness businesses. He co-founded Ding with a commitment to enhancing the efficiency, customer experience, and growth prospects of these establishments. Our next speaker for today is Kurat Syed. She is the creative force behind Lemon Salons. Kurat Syed Deshmukh holds a degree in Commerce and Management from NM College, a degree in Interior Design from Raffles International in Singapore, a Management degree from Rizvi College, and a Diploma in Salon Management from L'Oreal. Can we have a round of applause for Kurat, please? My next panelist is Rohan Kant. Rohan did his MBA from Indian School of Business and he is currently with Envy Salons. He's the CEO of Envy Salon, where he guides the company's strategic direction and ensuring its day-to-day operations run smoothly. His expertise also extends to operations, marketing, and IT, where he develops and executes strategies to promote and grow the business. Can we have a round of applause for Rohan, please? Thank you. My final panelist for today is Vandana Bharadwaj. She is the director and spokesperson of Marie Claire Paris Salons, India. I think Vandana is not yet here, but she will be joining us in a couple of minutes. So we will start with the panel discussion and Vandana will join us shortly. I'll quickly give an introduction about her. She's the director and spokesperson of Marie Claire B2C Network LLP, a prestigious Paris-based franchisee of salons in India. She holds double PhD degrees in her field of expertise as a social worker. She has received a lot of awards. Some of them include Most Premium Salon of the Year, Influencer of the Year, Mumbai Entrepreneur Award, and she has also founded an NGO called My Helping Hands. She is also the recipient of the Maharashtra Puraskar and the Karamveer Puraskar, as well as the Hindustani Pillar Award 2023. She is on her way. I think she's got stuck at the registry. Oh, there she is. Yes, Vandana, please, I've just given your introduction. Please join us on stage. A huge round of applause to this multifaceted entrepreneur. Just in the nick of time. Please join us. Hi, no problem. ऑलराइट, तो ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है. हमारे पास डेटा होता है हर सैलून में और
कस्टमर्स आते हैं, क्या सर्विस करवाते हैं, कितना टिकट प्राइस होता है, ये सारी चीज़ें क्या हम कोलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, और इन सब का क्या फ़ायदा होगा हमारे सैलून बिजनेस के लिए, ये हम जानना चाहेंगे आज हमारे पैनल से। तो मैं शुरू करूँगी हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट से। Akshay, can you tell us, and I would request the panel to speak in Hindi as much as possible. So, how is data helpful for a salon business? Hello everyone. First of all, thank you Vikas, Kanishka and the Professional Beauty team for inviting me. Welcome. So, data तो गोल्ड माइन है, राइट? हर जगह आज जैसे गूगल है, राइट? डेटा के दम पे बिलियनियर कंपनी है और आज सब जगह डेटा ही यूज़फुल है, राइट? सैलून बिजनेस में भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस एस्पेक्ट्स में? आप जब सैलून रन करते हैं, यदि आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप पेन इन पेपर पे अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, आप एंट्री करते हैं, पैकेजेस बनाते हैं, आपके पास डेटा होता है लेकिन पेन और पेपर में होता है, आप उन्हें एनालाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब डेटा आप जब कोई टूल यूज़ करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो आप पता चलता है आपको कि आपकी अपॉइंटमेंट रेंज क्या है, आपका कौन सा सर्विसेज है जो बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, आपके जो बुकिंग आवर्स हैं वो कौन से हैं जो पूरे पैक रहते हैं, और आपके प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। और डेटा आपको पूरा कस्टमर का पर्सोना देता है, आपको ऑनलाइन बुकिंग अपॉइंटमेंट्स सभी जगह डेटा हेल्पफुल है। सो डेटा है तो आपका ग्रोथ है, डेटा है तो आपके पास फाइनेंशियल ट्रेंड्स हैं, परफॉर्मेंस हैं, आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, आपको प्लान करना है, एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट डेटा। नाउ सैलून, आई थिंक मेरे पास जो ट्रेंड्स हैं 2022 में अराउंड 20% सैलून है जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेड है अराउंड 2030 तक 50% हो गए। तो अभी भी सैलून इंडस्ट्री बहुत पीछे है डेटा सॉफ्टवेयर यूज़ करने में। सो एक्सपेक्टिंग अ गुड ग्रोथ in the software plan, and also like industry is moving in very rapid pace, और कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड्स हैं वो अपवर्ड्स हैं। सो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, क्योंकि सलून्स प्लान कर पा रहे हैं, प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं किस एरिया में ओपन करना है। आई मीन मेनी थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट। When you say software, आप exactly क्या मतलब सॉफ्टवेयर का exactly क्या मतलब होता है? सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर तो बोलते हैं, तो आपको पहले तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए क्यों होता है, राइट? स्टार्ट कहाँ से होता है सॉफ्टवेयर? आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए कैलेंडर लगता है, जहाँ पर आप जब आपको किसी का कॉल आता है तब आप क्लिक करते हैं, आप डेटा लेते हैं, आप बुकिंग करते हैं, आपका कैलेंडर हो गया। या फिर आपके पास ऑनलाइन बुकिंग कैपेसिटी है, मोबाइल ऐप है, या फिर आपके पास एक वेबसाइट है या मिनी वेबसाइट है यदि सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जिससे 24/7 आपकी बुकिंग होती रहे, राइट? आपके पास स्टाफ मैनेजमेंट के लिए एक टूल है जहाँ पर आप परफॉर्मेंस चेक कर पा रहे हैं आपका स्टाफ का, आपका शेड्यूल कर पा रहे हैं, उनकी लीव्स हैं, हॉलीडेज़ हैं, उनका सैलरीज है। आपके पास इन्वेंट्री है, लेकिन आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, राइट? आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है, राइट? ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स आ जाती है जो प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है, या कौन सा प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, मुझे अकॉर्डिंगली प्लान करना है, या सप्लायर को ऑटोमेटिकली एक ईमेल चला जाए कि आई नीड दिस प्रोडक्ट्स इन दिस टाइम फ्रेम, राइट? देन आपका मार्केटिंग ऑटोमेशन, राइट? आपको पता है कि आपके कितने कस्टमर्स हैं, राइट? जो वीकली विजिट करते हैं, मंथली आते हैं, किसका हेयर कट है या किसका आपका कलर का जो रिमाइंडर्स है नेक्स्ट टाइम के लिए, उसे कब वापस भेजना है, राइट? फिर आपका प्रीपेड हो गया, आपका गिफ्ट कार्ड्स हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स हैं। आई मीन ऑल दिस इज लाइक एंड टू एंड सॉल्यूशन, स्टार्टिंग फ्रॉम बुकिंग टू अगेन गोइंग बैक टू द कस्टमर्स, राइट? तो ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर है या ये कोई जादुई छड़ी है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? हम लोगों ने 2018 में स्टार्ट किया था। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, हम लोगों ने वेटिंग टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्ट किया था एक्चुअली। क्योंकि आप देखते हैं कि आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अपॉइंटमेंट तो लेते हैं, पर आप 1 घंटे तक बैठे रहते हैं, या सर्विस स्टेशन पे जाते हैं, कार सर्विस दिया आपने और नंबर तो आपका बहुत आता है। इंडिया में तो हर आदमी वेट करते ही रहता है। हमने कहा चलो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और हमने ये जो बिजनेस कैटेगरी स्टार्ट किया था वो सलून था। हमने देखा है कि यार वेटिंग तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ रिक्वायर्ड। एंड या तो सॉफ्टवेयर है जो बहुत
प्राइसिंग वाले हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, यूज़र फ्रेंडली नहीं है. सो क्यों ना एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जाए जो इजी टू यूज़ हो. जैसे फेसबुक और व्हाट्सअप यूज़ करना आता है वो हमारा सॉल्यूशन यूज़ कर पाए, सेकंड्स में आपके अपॉइंटमेंट्स और इनवॉइस बन जाए. सो हमने ये सोच के कहा वील स्टार्ट एंड देन वील स्टार्ट इन डायरेक्शन एंड वी बिल्ड अवर सॉल्यूशन विद द इंडस्ट्री ओनली. और डिंग में आई एम लाइक आई very happy to say that like it's not magic. Now you have a solution Ding, Yeah. which cater all the aspects from booking to billing to marketing automation and your online page, integration with Google, Facebook, whatnot, everything. Right. Vandana, coming to you, how important is data for your salons? Hi everyone. Firstly, I'm really sorry for being little late. Well, data, when you talk about any business, data is the key. Data is everything. We are working from morning to evening to collect as much data and convert it into clientele and then do the follow-ups and all that. So I think data is the only asset we have. Even if whatever happens, if we have the data, we have everything in our hand. So data is the priority. Data means customers. So I think any salon is working hard to multiply their customers, having good connections. So keeping your data safe, protective, and multiplying it, that is the main objective of every salon. So it holds a great importance. Right. Kurat, coming to you, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है डेटा मैनेजमेंट को लेकर? Hello everyone. So data management is the key I feel for a successful business. एक salon चलाना ठीक है, I feel is fine, but still I would say data is very important. I think even he would agree to it because we are the back end people and हमको जो data management होता है ना वो एक बहुत बड़ा task रहा है always. And what stock that we have वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, even personalizing the software क्लाइंट वाइज. अभी आपका रेगुलर क्लाइंट है, वो आता है, उसको क्या पसंद है, वो कौन सा कलर ट्यूब यूज़ कर रहा है, हर बार उसको पूछने से अच्छा है अगर हमारे पास वो डेटा ऑलरेडी रहेगा तो आपका क्लाइंट आपसे खुशी होने वाला है और उसको मालूम है कि उसको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिल रहा है बिकॉज ऑफ विच यू नीड ऑल दीज इंफॉर्मेशन. व्हाट इज एंड हाउ इज इट गोना हेल्प? इट्स गोना हेल्प थ्रू द सॉफ्टवेयर. सो द राइट सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग. सेकेंड कि आपका जो स्टाफ है, आपके मैनेजर्स, वो उससे ईजीली अकस्टम हो जाए. अगर वो, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ हमारे इंडियन बोले माइंडसेट को, हम यूजुअली टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी इजीली अडेप्ट नहीं कर पाते हैं. प्लस हमारे जो स्टाफ है दे आर नॉट वेरी एडुकेटेड ऑल्सो. तो उनको सिखाने के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो इजी भी है और वो उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सके. अब वो स्टाइलिस्ट से लेके मैनेजर लेवल हो या सीईओ लेवल हो, हर लेवल पे वो सॉफ्टवेयर काम आता है. देखा जाए तो जैसे स्टाइलिस्ट, उनको अपने पूरे दिन में कितना बिजनेस होता है. पहले कैसा होता था, वो लोग बुक मेंटेन करते थे, आज मैंने इतने हेयर कट किए कि इतना क्या क्या सर्विस किया है, ग्लोबल किया है या जो भी है. आज उनको डे एंड पे सॉफ्टवेयर से एक मैसेज आता है, उनका बिजनेस पता चल जाता है. हमारे लिए भी थोड़ा हैसल फ्री है कि हमको डे एंड पे बताना नहीं पड़ता है कि आपका कितना टारगेट अचीव हुआ है. सो ये सारी आसानी जो है ना वो सॉफ्टवेयर के थ्रू है. सो डेटा इज समथिंग नॉट जस्ट क्लाइंट लेवल बट स्टॉक लेवल, वर्क लेवल, कि उनने कितना काम अब तक किया है, ये लोग के हेयर कट ज़्यादा हो रहे हैं कि इनके कलर ज़्यादा हो रहे हैं. ऑल दिस इज डेटा and it has to be under one software, not many software. Trust me, it makes life much more easy. Right. And I am happy to say that Lemon uses Ding. And I'm also thanks to her actually, because when I said like we build our software with the industry expert, and she is one of the industry expert. 3 years. 3 years I've been using Ding. Okay. Rohan, what is your experience? How do you manage data at Envy? Hello. Yeah. So data is a very broad concept for me. Yeah. Data सब जगह होता है हमारे लिए. Data is something कि आप you need the, अभी हिंदी में जैसे बोलो कि
आपको डेटा सब डिसीजन के लिए चाहिए होता है, जाने या अनजाने में भी आप डिसीजन लेते हो डेटा के बेसिस पे। कभी हम बोलते हैं कि आज हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, अभी ये जब आप बोलते हो अच्छा है, अच्छा आप बोलते क्यों हो? क्योंकि आपने एक सबकॉन्शियसली एक कंपैरिजन किया होगा कोई तो दिनों के साथ या आपके पुराने के साथ में कि ये दिन में हमारा सेल अच्छा है या अच्छा है। सो आप देखने जाओ तो हम डेटा यूज करते हैं, हम डेटा को एनालाइज करते हैं, सब करते हैं। कोई कोई फंडामेंटल में बहुत हैवीली करते हैं, कोई कोई एकदम बेसिक लेवल पे करते हैं, बट सब लोग करते ही है। सो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एनी डिसीजंस। आप डिसीजन जब बनाते हो यूजिंग डेटा, आपको एक क्लैरिटी होती है कि आप वो डिसीजन ले रहे हो क्यों ले रहे हो। वो जब एक क्यों पता चल जाता है तो वो चीज़ को आप सब जगह रेप्लिकेट भी कर सकते हो। हम बोलते हैं कि अगर हमारा सैलून का बिजनेस अच्छा है, हम क्यों बोलते हैं वो अच्छा है? वो जब हमें वो क्वेश्चन का आंसर मिलता है, वो पता चलता है कि ये या पैरामीटर अच्छा है कि आज हमारे पास ज़्यादा क्लाइंट्स आए, आज हमारे पास ज़्यादा फुटफॉल हुए, आज हमारे पास ज़्यादा सेल हुए हैं। बट ये सब डेटा की वजह से ही होता है। सो डेटा आपके सेल्स में भी होता है, आपके परफॉर्मेंस में भी होता है, आपके मार्केटिंग में भी होता है, आपके ऑपरेशंस में भी होता है। सो सब जगह का डेटा का इतना अवेलेबिलिटी है कि उसको अंडरस्टैंड करना बिकम्स द मेन एलिमेंट फॉर अस, कि ये डेटा अवेलेबल है, उसको हम एनालाइज कैसे करें। वो पॉइंट पे हमें समझ आता है कि जब डेटा होता है उसको डेटा रीड करने के लिए उसको कोई इजी बना के हमको चाहिए होता है। हम चाह के बोले कि डेटा आज अपॉइंटमेंट करना है तो बहुत सारे लोग पहले बुक पेन पे लिखने लग देते थे। ठीक है डेटा तभी भी है, बट सोचो अगर आपको किसी को ढूंढना है एक 100 पेज की बुक में एक क्लाइंट को, नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा। सो टू मेक दैट डेटा यूजेबल, टू मेक दैट डेटा इजी टू इवन टेक अ डिसीजन ऑन, इज व्हाट वी हैव टू कम टू अ अंडरस्टैंडिंग कि वो डेटा को कैसे जब चाहिए हम यूज करें और उसके बेसिस पे कोई डिसीजन ले जो हमारे बिजनेस को बढ़ाए। एंड वो एक फंडामेंटल होता है कि व्हेन वी से वी नीड अ स्पेसिफिक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कैन बी पुट इन एवरी पॉइंट ऑफ इट। आप कभी HR के लिए डाल दो, कभी सॉफ्टवेयर सैलून के ऑपरेशंस का डाल दो, अपने मार्केटिंग के लिए डाल दो। सो फंडामेंटल ऑफ डेटा इज दैट यस डेटा इज देयर, यू नीड द डेटा टू मेक अ डिसीजन। जब आप डिसीजन बेस करते हो विथ फील, वो उस पॉइंट में भी कभी ना कभी आपने कुछ तो डेटा एनालिसिस किया है, बट आपको पता नहीं आपने क्या एनालिसिस किया है। Yeah. Right? So yes, when you start making decision based on data, you will start actively सोचने के लिए कि क्या था, and वो एक start level का step होता है। Rohan, can you give me an example of this? How you use that analysis and take decisions based on your data analysis? So I'll go to the basic fundamental of it. I'll Yeah. start with basic and advanced also कैसे होता है। अगर हम सब लोगों ने कभी ना कभी तो बोला होगा कि हमारा सैलून अच्छा कर रहा है, राइट? क्यों बोलते हैं हम वो अच्छा कर रहा है? क्योंकि खाली हमारा सेल्स अच्छा है। दैट कैन बी वन फंडामेंटल टू सी कि आज हमारा बिजनेस से ₹1,00,000 कर रहा है, जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल फिगर, ओके। बट वो ₹1,00,000 कैसे हुआ? आपने किसके साथ कंपेयर किया? सो यू मस्ट हैव कंपेयर्ड विद समथिंग कि लास्ट सैटरडे ये है, या लास्ट मंथ में मेरा इतना हुआ, या लास्ट ईयर में इतना हुआ है। सो वो लेवल ऑफ एक बेसिक लेवल कंपैरिजन होता है जो आई थिंक सब लोग ने कभी ना कभी किया होगा। जब वो लेवल से चालू करते हो, आपका डेटा जैसे आपको मिलते जाते हैं, आप इंक्रीज करते जाते हो, यू माइट देन गो टू अ सेकंड लेवल कि आज कितने फुटफॉल आए थे, मेरा एवरेज टिकट साइज कितना हो गया है, मेरा गेस्ट रिटेंशन कितना हो गया है, मेरा फीडबैक स्कोर कितना हो गया है, मेरा कंजम्पशन परसेंटेज कितना हो गया है। सो डेटा इज ह्यूज। Yeah. जितना आप डेटा को लोगे और उसको एनालाइज करते रहोगे, आप उसको एक बारीकी से आप अपने सैलून को देख पाओगे। आपको सैलून में रहना जरूरत नहीं है जब तक जब तक डेटा आपके पास है। आपको डेटा पढ़ने आ गया तो आप समझ सकते हो कि सैलून में क्या हो रहा है विदाउट एक्चुअली बीइंग इन द सैलून। Okay. Got it. Vandana, you have a chain of salons. So, जैसे कि कुरुत ने भी ये कहा कि स्टाफ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करें। सो हाउ डू यू हैंडल दिस, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ पर डोर। So, as we are talking about data, so data say everything falls in one place. It, of course, staffs are not well aware, and also, of course, we have to conduct trainings in our academies. We have to, whenever we always have sessions or trainings. Whenever we take our employees, we give trainings for 3 months for hair and everything.
So we make sure that we train them in software digitalization as well as soft skill training. So data is everything is in English. So सबसे पहले हम soft skills की training देते हैं उन्हें software को समझने के लिए. Okay. So then that goes for like 3 months or something like that. And then with all the creative haircuts and all beauty and all, that's how it becomes easy for us. It is not that easy the way it sounds. It is difficult, but that is the process which we follow in our salons. Okay. Kurat, what about you? How do you train your staff in handling software? सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वी कनेक्ट, देर इज IVR नंबर्स आर देयर टू कनेक्ट टू द सॉफ्टवेयर. सो जब भी वो लोग थोड़े अटकते हैं, कोई चीज़ समझने नहीं आती है, सो दे हैव द कॉल सेंटर नंबर दैट इज़ देयर. और हर 2-3 महीने में जो भी चेंजेस होते हैं या अपग्रेडेशन होता है, तो हम लोग जैसे सबको एक साथ एनी डेस्क पे लेके इफ़ पॉसिबल या इफ़ सलोन विजिट पॉसिबल जो भी है, वी ट्राई टू एडुकेट देम दैट वे. बट आई पर्सनली फील के सॉफ्टवेयर की जो टीम है उनके थ्रू जो ट्रेनिंग होती है वो ज़्यादा डिटेल्ड होती है. अगर मैं मेरी टीम के थ्रू ट्रेनिंग पास ऑन करूँगी तो वो उतनी डिटेल नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी मैनेजर्स या स्टाफ के पास ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब मेरे पास नहीं होते हैं. Right. क्योंकि मुझे भी तो सीखना पड़ेगा ना सॉफ्टवेयर वालों से पहले. जी. तो मैं रादर प्रेफर करती हूँ कि एवरी 3 मंथ्स में मैं इंसिस्ट करती हूँ कि एक ब्रीफिंग की ट्रेनिंग होती रहे. तो ये जो है ये सिर्फ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, बट मैं समझती हूँ इवन दे आर आर्ट, वेदर इट्स ट्रेनिंग फॉर हेयर और ब्यूटी, हर चीज़ में, बिकॉज एजुकेशन इज़ की, Yeah. education is power, and the more you have it, it's better, and it is something nobody can take it away from you. So the more they will learn, उनके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है. तो आई फील एवरी 3 to 6 months बेसिक का ब्रश थ्रू होते रहना चाहिए. एंड मैं प्रेफर करती हूँ कि वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर वालों के थ्रू, दैट इज़ व्हाट आई डू. पर ये आपके स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता, क्योंकि वो लोग टेक्निकल ट्रेनिंग तो कंटिन्यूअसली ले ही रहे हैं, फिर ऊपर से सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग भी लो. कब कोई रेजिस्टेंस हुआ है कभी स्टाफ की तरफ से? नॉट रियली, क्योंकि मैं ऐसे टाइमिंग पे रखती हूँ ना सुबह के टाइम पे कि उनके पास इतना कुछ रहता नहीं है करने के लिए. एंड वी Okay. प्रेफर इट लाइक वीकडेज पे हो, ये चीज़ है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना, उनको उनका फ़ायदा दिखाना बहुत ज़रूरी है. अगर आप फ़ायदा दिखाओगे ना तो वो लोग खुद से बोलेंगे. जैसे अभी रिसेंटली, अभी मैं आने से पहले मेरे सलोन पे ही थी, तो मैंने मेरे स्टाफ ने, क्योंकि उनको बिजनेस का मैसेज नहीं आ रहा है व्हाट्सएप पे या SMS पे, तो अभी सब ने ईमेल आईडी बना दी है. इनने ज़िंदगी में कभी ईमेल आईडी नहीं बनाया था. इनके पास ईमेल आईडी था सिर्फ फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करने के लिए. आज ये प्रॉपरली ईमेल चेक कर रहे हैं. इनको पता है जीमेल नाम की एक चीज़ होती है, उसमें लॉगिन करना होता है, क्योंकि उनको उनका बिजनेस देखना है, ताकि वो समझ सके कि वो दिन में कितना कर रहे हैं, उनका टारगेट कितना अचीव हुआ है. तो इसमें क्या हो रहा है, वो एक नई चीज़ सीख भी रहे हैं, प्लस मेरा भी फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है. तो उनका फ़ायदा जब आप दिखाओगे ना तो वो खुशी खुशी हर चीज़ सीखेंगे. दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. अगर स्टाफ को पता चलेगा कि इसमें उनका ही फ़ायदा होने वाला है तो वो प्रोएक्टिवली करेंगे. अक्षय, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्यों लें जब गूगल स्प्रेडशीट फ्री है? गूगल स्प्रेडशीट पे आप डेटा एंटर कर सकते हो, राइट? लेकिन आपको जब एनालिटिकल चीज़ें एनालाइज करनी है तो आप कैसे करेंगे? और अब सॉफ्टवेयर इसलिए चाहिए क्योंकि आपको फिंगर टिप्स पे सब अवेलेबल. लेट्स से आप कहीं किसी सलून में जाते हैं और आपने आपका नंबर डाला, राइट? अभी आपके पास यदि आपकी पूरी हिस्ट्री आपको पता चल जाती है तो आपको हमेशा सब कुछ दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सलून में कोई कस्टमर आया, उसने लास्ट टाइम क्या सर्विसेज करवाई थी, उसने कौन सा कलर कोड करवाया था, राइट? या नोट्स में आपने डाल दिया कि वो हर बार जब हम उनसे पूछते हैं, जब आते हैं कि आप चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे या वाटर लेंगे, वो हमेशा बोलते हैं कॉफ़ी है. तो नेक्स्ट टाइम आप उन्हें ये मत पूछिए, सिर्फ ये बोलिए प्लीज़ बी सीटिए, आई विल गेट अ कॉफ़ी फॉर यू, राइट? You don't need to think and like you just need to just type their number or name and you get all the history, right? So I mean that's why software is very much required. Yeah. और I mean this is about like Excel sheet और आप जो बता रहे थे, but जो मैं स्टाफ्स का जो एक रिप्लिकेशंस होते हैं, मैं जो ट्रेंड्स हैं उसमें ऑब्वियसली जब नई चीज़ आती है तो आप मना करते हो उसके लिए, राइट? अरे मैं कैसे करूँ? अब सब लोगों को जब बाइक चलाना या कार चलाना हम सीखते हैं, हम लोग हमने कभी नहीं चलाई,
अरे डे पहला दिन तो होगा जब आप रोड पे ले जाओगे, वो आज का दिन ही है। अब बट क्यों आपको ले जानी है? क्योंकि आपके बेनिफिट्स हैं, आप खुद से जा पाओगे, राइट? सो एनी राइटली सेड, जब तक आप कस्टमर को बताओगे नहीं कि आपका सलून ऑपरेशंस में कितना इफिशिएंसी होगा, आपको कितना बेनिफिट्स हैं, इसके इंसेंटिव्स मिल रहे हैं आपको, सो जब आप बताते हो, कम्युनिकेशन आप प्रॉपर रखते हो, तो डेफिनेटली दे गो फॉर इट। एंड हमने ये इंडस्ट्री में ट्रेंड्स देखा है, थोड़ा टाइम लगता है इनिशियल डेज में, बट जैसे रेगुलर ट्रेनिंग्स हैं, या हमने जैसे IVR रखा हुआ है, चैट सपोर्ट है, ट्यूटोरियल्स है, हेल्प डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कभी भी जाके रीड कर सकते हो। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन डेफिनेटली वो सब हमने गिफ्ट में बना रखा है कि इजीली आप जाके चेक करो कैसे कैसे आपको क्या करना है, तो उसके कारण से हो जाता है वो। Okay. Vandana, what are the common mistakes that salons make when they are using data or analyzing data or even storing data? So basic, the main hurdle is education. So it's of course it is a process. We have to keep themselves with us like a child. उनको अगर हम ऐसे abandon नहीं कर सकते, they keep making lot of mistakes, like configuring it with the whole actual data, understanding the clients, and and configuring it. These are the basic mistakes they keep doing. But the point is, they are the learners, and so we are, as you said, And software is something which is engineering kind of stuff. So I understand, but then gradually they get the fact that this is how it is, and usually we always prefer friendly kind of datas or softwares. Like we tell them, basically apart from data, we prefer them to understand customer relationship management. So when they understand that customer relationship management is so important, so gradually they understand, but errors are always there. And I think in chains of salons, this process will keep going on and on. Now AI is there, so now we have to learn AI. So technology is moving, everything is going another direction. We are looking little backward now when all these technologies are coming. So I think we have to just keep learning and teaching our staffs, learning ourselves. That's the only key. Right. Rohan, what do you have to say to that? So data, can you just repeat that question? What are the common mistakes that salons tend to do? So one thing we need to understand that whenever we are using any software or data, right, we should not come to a point where we change the experience of the salon and make it more mechanical. Okay. अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कितना भी यूज कर रहे हैं, राइट, एक फंडामेंटल होता है कि अंडरस्टैंड करने की, दैट इज जस्ट टू सपोर्ट योर सलोन एंड नॉट टू ओवर पावर योर सलोन. बिकॉज मेनी टाइम्स हम लोग जब ये चीज़ यूज़ करने जाते हैं, हम बहुत एक फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ देते हैं. एंड बिकॉज हम एक सलोन इंडस्ट्री है, एक सर्विस इंडस्ट्री है, वो फ्लेक्सिबिलिटी इज समथिंग विच ड्राइव्स द रिलेशंस. Yeah. Right, and that is something which we need to always understand. Everything will be there, but we should not take it as a process ki this is it, right? Business is what it is, and we have to make sure that business is still flexible so that we are still catering to the clients, right? Many times it happens ki we become so rigid by just following that specific set of process that we don't have the flexibility to cater to the needs of some clients, and in the end इट शोज. मतलब अभी नहीं पता चलता है, थोड़े टाइम के बाद एक क्लाइंट बोलता है यार यहाँ तो बहुत वैसा ही है, कुछ वार्मथ नहीं आ रहा है, कुछ फीलिंग नहीं आ रही है, बिकॉज सब लोग ABC करते जाते हैं. उनको बोला है कि आप सिस्टम में जाके ये करो वो करो वो करो. वो एक प्रोसेस बहुत मेथोडोलॉजिकल होता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज अ सलोन देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ, राइट? सेकेंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वट एवर वी टेक, लेट इट बी विच एवर सॉफ्टवेयर, इट शुड हैव अ यूजेबिलिटी फॉर आवर employees as well. Okay. Right, so that becomes a very important factor, that they should not feel that they are forced to do this. Yeah. So that is the two things which I believe is the most important for us. Right. Thank you, Rohan. Kurat, coming to you, most of our delegates today are either standalone salon owners या सोच रहे हैं दूसरा सैलून ओपन करें. तो ऐसे में आप उनको क्या सलाह दे सकते हो when it comes to use of data and technology? Okay, so first of all, whether it's a standalone salon, मैंने पहले भी कहा है, या चेन ऑफ salons हो, प्रॉपर सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है. जी. उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. एंड डेटा से क्या होगा,
अभी जैसे हम हमारी बात करते हैं, व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम वन सैलून, तभी वो ज़माने में सॉफ्टवेयर कुछ ढंग के नहीं होते थे, वो टैली टाइप के सॉफ्टवेयर होते थे. अगर सोचो हमारे पास वो वक्त से सही सॉफ्टवेयर होता ना, तो जो मेरे पास क्लाइंट डेटा होता, आई वुडेंट हैव लॉस्ट ऑन मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स. Yeah. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. हम इनिशियली ये इन्वेस्टमेंट करने को डरते हैं. एक्चुअली देखा जाए कि ज़रूरत नहीं है, एक ही तो सैलून है. बट आपका जो पहले सैलून का भी जो कस्टमर है ना, वो हमेशा के लिए आपके लिए बन सकता है अगर आपके पास उसका डेटा हो. कि जैसे एक टचअप है, वो हर 15 दिन में आता है. अब वो क्लाइंट आता है, आपको पता है उसको ब्लैक कॉफ़ी पसंद है कि मिल्क कॉफ़ी पसंद है, विद शुगर विदाउट शुगर, उसका टचअप का कलर क्या है, इनोवा है या माजरेल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिख दी. अब कल को आपके 3-4 सैलून भी होते हैं, वो क्लाइंट ये ब्रांच से दूसरी ब्रांच में गया, आपके पास डेटा है, वो लोग को फील एट होम वाली फीलिंग जो आती है ना, कि मुझे पता है मैं जो भी लेमन में जाऊंगा मुझे वही सर्विस मिलने वाली, मुझे फिर से पूरी राम कहानी कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ऐसा करके दो वैसा करके. तो डेटा एनालिसिस, प्रॉपर सॉफ्टवेयर, ऑल दीज थिंग इज़ अ पैकेज डील एंड started from your first salon. Honestly, choose the right software whichever you are comfortable with, क्योंकि ये पहला कदम है. मैं समझती हूँ अगर आपका बैकएंड स्ट्रॉन्ग है ना, इट्स रीढ़ की हड्डी है वो, सिंपल एज दैट, कोई भी सैलून को चलाने के लिए. That's a very good example. Akshay, what would you like to add? So, rightly said. I mean, like, data is a powerful thing. Like capturing a data from a single outlet to multiple outlet is very very important, right? So, आप जब सॉफ्टवेयर चूज करते हो तो सबसे पहले आप देखिए कि सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है. आपका जो स्टाफ है वो समझ पाएगा कि नहीं पाएगा. कॉम्प्लेक्स तो नहीं है. रिपोर्ट्स जो आप निकालते हैं वो फिंगर टिप से अवेलेबल है, कुछ क्लिक्स में ही अवेलेबल है. आप जब अपॉइंटमेंट बुकिंग करते हैं, वो कितना टाइम लग रहा है अपॉइंटमेंट बुकिंग करने को, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो आपको एंटर नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर आता है फटाफट बोलता है मुझे ये चाहिए मुझे चाहिए. आप उसको खड़े तो नहीं रख सकते हैं. या इन्वॉइस बनाते वक्त भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, उसने कोई प्रोडक्ट लिया या कुछ प्रीपेड लिया, पैकेज लिया है, तो वो उसको ही शुड नॉट और ही और शी शुड नॉट स्टे इन लाइक मोर देन 2 minutes है, राइट? सो और वो आपको उसका इन्वॉइस ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंच जाए, उनके SMS के थ्रू पहुंच जाए, राइट? और वो अपना हिस्ट्री देख पाए. फिर आपकी नेक्स्ट चीज़ आती है कि टेक्नोलॉजी, राइट? टेक्नोलॉजी, आप जो कंपनी से एक साथ जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी एम्पावर है या नहीं, वो नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगी कि नहीं. जैसे वंदना ने बोला AI, राइट? अब AI है, राइट? अभी AI आ रहा. वी गाइस स्टार्टेड वर्किंग ऑन AI एंड मशीन लर्निंग. सो नाउ अभी आप सुनोगे कि जब डिंग आ रहा है, राइट? सो डिंग जब आपने बोला कि कस्टमर ने बोला कि मुझे बुकिंग इस टाइम में इतनी बजे चाहिए, ऑटोमेटिकली आपने बोला और आपका बुकिंग हो जाएगा और आपको SMS आ जाएगा. यू डोंट नीड टू टाइप और पुट इनटू इट, राइट? सो इट्स कमिंग अप. सो इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली इट विल गेट मैच्योर इन सम टाइम. देन आपका जो सपोर्ट ऑपरेशंस होता है, डेली ऑपरेशंस, आपको मैच करना है कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो उसके साथ कैसे एफिशिएंट है, आपकी जो अपॉइंटमेंट एफिशिएंसी वो कैसे बढ़ाएगा, आपका जो कस्टमर का पर्सोना है वो कैसे हैंडल करेगा. और फिर आपका सिक्योरिटी, हमने अभी तक सिक्योरिटी की बात नहीं करी, राइट? डेटा है, कैप्चर भी कर रहे हैं, व्हाट अबाउट सिक्योरिटी? आई मीन, आपने देखा कि ये लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, राइट? सो सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? लाइक अभी क्लाउड सॉल्यूशंस हैं, तो क्लाउड सॉल्यूशंस हैं तो इनक्रिप्टेड है या नहीं है. सो इनक्रिप्टेड, आई मीन लाइक आपका डेटा आता है तो वो इनक्रिप्ट फॉर्म में होता है या कोई और भी उसको आपके सर्वर पे जाके कर सकता है कि नहीं. हम लोगों ने सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग रखी हुई है. तो सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग. आई मीन लाइक मेनी सैलून ओनर्स एंड चेन्स, दे कम टू अस एंड दे आस्क दिस क्वेश्चन फर्स्ट, बिकॉज दिस इज अ गोल्ड माइन, राइट? मेरा डेटा किसी और के पास चला जाएगा. तो हम लोग उसमें बहुत ध्यान रखते हैं. हमें बहुत बार बोलते हैं कि आप यदि मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल दे रहे हैं तो आप हमें बाकी कस्टमर का डेटा देंगे क्या? मैंने कहा वी साइन NDA and our business is not data selling. Our business is software, right? And helping. And it's not selling. It's partnering with the industry to help them to grow to the next level. And then आपके security हुई. फिर आपका जो मैंने बोला था easy to use solution, वो बहुत बहुत important है. उस पर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है. जब भी हम कोई नया फीचर लॉन्च करते हैं तो हम देखते हैं कि वो यूजेबिलिटी है, यूज़र फ्रेंडली है, कितने क्लिक्स में वो हो जाएगा. और आपका जो
फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है। अब मैं आपको कुछ ट्रेंड्स बताता हूँ कि आपका यदि आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आप जैसे नो शोज़ हैं, हमारे जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तो नो शोज़ बहुत होते हैं, राइट? Right. लेकिन हमने जो ट्रेंड देखा है, यदि आप SMS रिमाइंडर या व्हाट्सएप रिमाइंडर सेटअप कर देते हैं तो 30% नो शोज़ कम हो जाते हैं। आपका 30% बिजनेस तो यहीं बढ़ गया। फिर आपने जो रिमाइंडर्स हैं, यदि आपने उन्हें रिमाइंडर्स दिए, जैसे हेयर कट का रिमाइंडर है, अभी क्या हमें आदत होती है थोड़ा डिले करने की, राइट? हमने हेयर कट किया, हम 30 डेज में वापस, ठीक है यार 4-5 दिन जाते हैं, लेकिन हमने रिमाइंड कर दिया इट्स टाइम फॉर हेयर कट, इट्स टाइम फॉर हेयर कलर, अगेन 20% आपका बिजनेस इंक्रीज हुआ, राइट? देन आपका ऑनलाइन बुकिंग्स, अभी ऑनलाइन बुकिंग्स का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। आई मीन लाइक पीपल आर आस्किंग फॉर ऑनलाइन बुकिंग। हम लोगों ने वी इम्प्रूव्ड इट अलॉट नाउ। गूगल से इंटीग्रेट कर लो, फेसबुक में डाल दो, बुकिंग क्लिक किया ऑटोमेटिकली आता है, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू आपके शेयर कर दो क्लाइंट के साथ, क्लिक करेगा आपका पूरा लिस्ट आ जाएगा, देन यू कैन चूज एंड देन बुक अपॉइंटमेंट 25%। इट अगेन इंक्रीजेस business by 10 to 20%, believe me, Okay. and it's going to be a next boom, right? Product sell karo, package sell karo, you can sell everything, and like I mean lot of industry I mean they are already using through their website, but website में क्या होता है कि आपको उसको SEO बढ़ाना पड़ेगा, उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तब आएगा। Right. वंदना, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को आज अबाउट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा मैनेजमेंट? सो आई थिंक आजकल हम जब शॉपिंग भी करते हैं ऑनलाइन तो वी नेवर वांट टू टॉक टू एनीवन। वी आर लाइक हम क्लिक करें और हमारा व्हाट्सएप में मैसेज आ जाए और हम अपना व्हाटएवर कार्ड्स स्कैनर से करें या किसी भी तरह ऑनलाइन पेमेंट कर दें एंड वी आर डन एंड वी जस्ट एक्सपेक्ट आवर कोरियर टू रीच एट होम। हम इतने वी हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग इन आवर हेड दैट वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम इन समथिंग विच इज़ नॉट that which is important but not to an extent which gonna give something out of it। तो हमको अपना जो लाइफ में जो इंस्टेंटली चीज़ें चाहिए, द सेम वे हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं दे ऑलवेज वांट कि मुझे हेयर कट भी कराना है, मुझे द वे शी सेड दैट यू नो हमें किसी को मुझे अगर कुछ करवाना है एंड ही ऑलरेडी नोज इट बिकम्स इट वेरी इजी यू नो। सो आजकल ये बहुत ही इंस्टेंट फैसिलिटी बहुत फैशन में है, इसीलिए हर चीज़ इंस्टेंटली हो रहा है। तो हमें समझना है कि कस्टमर्स को अभी दे वांट टू फील गुड फैक्टर इज ऑलवेज देयर, बट फील गुड फैक्टर ये भी हो गया है अभी दैट वी डोंट वांट, एंड इफ दे वांट टू कम्युनिकेट दे वांट टू टॉक व्हाट दे लाइक टू टॉक, नॉट व्हाट वी वांट देम टू टॉक यू नो। हम सैलून में वो आ जाते हैं, फिर देन व्हाटएवर वी डू वी गिव देम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट्स, बेस्ट पॉसिबल एटमॉस्फेयर, दैट इज द फील गुड फैक्टर। बट उससे आगे पीछे अपॉइंटमेंट बुक करना, ये सब those things has to be very easy, that should not include too much of communication। So I think this we even single unit salons hain ya multiple salons hain, this is very basic, we all should follow। And apart from that, when you talk about software, बहुत ही heavy word लगता है, but if you see, if we observe our life, we are always using our phones maximum times, so there is some applications we are using। If you talk about GMB pages, हमको इनिशियली GMB पेजेस समझ में नहीं आता था यू नो, बट अभी सैलून ओनर्स दे अंडरस्टैंड कि अगर हमें अभी रिव्यू आया है क्लाइंट का, सो इंस्टेंटली वी शुड रिप्लाई यू नो, दे फील गुड अबाउट इट। अगर हम क्लाइंट का ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स, वो अपनी वीडियोस, हम उनसे वीडियोस बनवाते हैं, बट जब क्लाइंटल की भी वीडियोस डालते हैं अपने इंस्टा पेजेस पे या फेसबुक पेजेस पे या डिजिटल मार्केटिंग के जो भी मीडियम है उससे, they feel good about it you know, pre-booking, they love it, and if you tell them, if you refer the friends and all, they love it। So we have to understand whatever they like it, we have to put it in one place and we make sure that checklist हमारी सारी correct होनी चाहिए। और सॉफ्टवेयर को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना है, एक इट्स लाइक अ ई-बुक, उसको हमको ई-बुक की तरह समझना है, one by one it becomes little easier by the time 1 year हो जाएगा, 2 years हो जाएंगे, और छोटी छोटी चीज़ें वो ऐड ऑन करते रहते हैं। सो इट्स नॉट दैट स्ट्रेसफुल थिंग। वेबसाइट है, वेबसाइट आप सिंपल बनाएं, उसके साथ आप ऑनलाइन अपने क्लाइंट्स को इंस्टेंटली आप उनकी व्हाटएवर ही सेड दैट रिपोर्टिंग हो जाती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना होता है। हाँ, बट ये है कि सिक्योरिटी, अपने क्लाइंट की सिक्योरिटी का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। Whenever you approach any software company and all, make sure that
यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका डेटा कितना सिक्योर्ड है. यूजुअली वो क्या करते हैं, वो 4-5 बड़ी बड़ी ब्रांड्स के नाम बता देते हैं. देखिए मैम, इनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, इनका नीचे जा रहा है. तो इट मीन्स दे हैव ऑल द डेटा. दे टेल, सो many times they take your data and so they take, suppose I have taken his data, she has taken my data, so वो cross connection भी होता है clients का. So security is extremely important. Otherwise क्योंकि हम लेमैन है तो हमको ये चीज़ें समझनी है कि सिक्योरिटी के बारे में ज़रूर बात करना है, और हमको नहीं जानना है कि दूसरे सैलून के कितने क्लाइंट्स हैं. दैट इज़ नॉट आवर ऑब्जेक्टिव. आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक श्योर दैट वी आर सेफ, वॉट एवर वी आर पुटिंग इनपुट इन, हमारे डेटा में वो सब है. थैंक यू वंदना. रोहन, आप क्या सलाह देंगे about data management? Data, right? Yes. So for everybody, data they should start using it. सब decision अब data से ही करते हो. मैं थोड़ा वेरी हाई लेवल देखोगे तो आप अभी भी करते हो, ओके, बट आप जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि गूगल शीट्स और सॉफ्टवेयर में क्या है. सॉफ्टवेयर में एक डिफरेंस होता है कि वो आपको ईजी बना के सब देता है. अगर आपको गूगल शीट्स में करोगे, ऐसा बुरा नहीं है कुछ भी, आप उसमें भी डेटा करो, बट खुद लेना होता है. पर जब आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू करोगे, आपकी आंखें खुल जाएगी कि एक्चुअली हो रहा क्या है. जब आप अपना वो चीज़ लेके जाओगे, आपके स्टाफ के साथ बैठोगे, किसके साथ बैठोगे, एंड उन लोग ने आपको कोई भी रीज़न दिया होता है कभी भी, और वो आपके पास जब डेटा सामने होता है वो मैच नहीं हो रहा है, तो आइदर उसकी आँख खुलेगी या आपकी आँख खुलेगी. दोनों में से एक तो होने ही वाला है, राइट. सो अगर आपको बढ़ने का है, आपको ग्रो करने का है, आपको एक डेटा ओरिएंटेड अप्रोच ही करना पड़ेगा. नहीं तो आप खाली लुक एंड फील से करोगे तो एक पॉइंट तक वो ठीक है, बट एक पॉइंट के बाद जब आपकी जहाँ नज़र नहीं जा पाएगी, आप वो चीज़ को नहीं देख पाओगे. तो जब कोई कुछ भी बोल रहेगा, वो बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे होगे, राइट. सो यस, डेटा, आई वुड से एवरीवन शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग आइदर इन अ सॉफ्टवेयर. आई शुड नॉट बी समथिंग कि पूरा का पूरा खाली कर दीजिए. जो स्टार्ट समवेयर, कहाँ से शुरू करो. जैसे आप स्टार्ट करते जाओगे, आपको देखता जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी. आपके डिसीजंस बढ़ते जाएंगे, आपके स्टाफ की आंखें खुलती जाएगी कि हाँ, मेरे को तो ये पता ही नहीं था हो रहा है. मेरे लिए तो अगर बिजनेस बुरा है, मेरे पास नए क्लाइंट्स आते ही नहीं है. ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है. बट जब आप वो डेटा के साथ, जो बिकॉज आपको सॉफ्टवेयर चाहिए अगर मेंटेन करने के लिए, वो लेके जाते हो तो बोलते हैं यार मेरे पास तो थे, तो फिर क्या रीज़न था जिसकी वजह से नहीं हो पाया है, राइट. सो आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेंज हो जाता है कि ये बल्कि रीज़न नहीं था जिसको हम टैकल करने की कोशिश कर रहे थे, हम एक्चुअली इसके वजह से नहीं हो रहे थे. एंड वो एक आपको क्लैरिटी मिलती है जब आप ये यूज़ करने शुरू करोगे. तो यस, मेरा राय होगा कि यस, एवरीवन शुड स्टार्ट, एटलीस्ट जो नहीं करे, स्टार्ट यूजिंग इट, एंड आप खुद देखोगे कि उसकी बेनिफिट्स क्या होगी. आप बोलोगे नहीं, मेरे को अभी और आगे जाना शुरू करना. राइट. ऑन दैट नोट ये पैनल यही खत्म होता है. ऑडियंस की थैंक यू. ऑडियंस से अगर sorry. कोई सवाल है तो हम Yeah. एक क्विक Excuse क्वेश्चन me. ले सकते हैं. समीर, यू हैव अ क्वेश्चन? Wow. Yes, Yes. Can we have a mic there? there's something for you only, I want to say. Can we have a mic for him, please? Okay. First of all, I think very, very happy to see the younger generation embracing data. I've had the fortune of working with Ding. In fact, हमारे नए salon company में looks में about 25 to 30 salons are now using Ding, and slowly we are moving into another software over the period of time. But coming back, I think all of you are half my age, and I'm very, very happy. 10 साल 11 साल पहले मैंने डेटा को embrace किया था. I was fortunate to work for a company called Kaya and then JCB, and I've realized कि JCB की marketing spend 1% होती थी, and it's a 63% repeat rate. That repeat rate only happened when you were mapping data. तो अगर आप अपने कस्टमर को मैप नहीं करोगे, अपने हेयर ड्रेसर को मैप नहीं करोगे, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओगे नहीं, तो और ये मैनुअली हो नहीं सकता, टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी. बट डोंट बी अ टेक्नोलॉजी फ्रीक. डोंट मिस आउट ऑफ गोइंग टू द सैलून once in a week, meeting your customers, having a cup of coffee at Costa's, okay, which is right next to Lemon. But
never miss out on the human part. That's my only advice. Okay, great. 80% टेक्नोलॉजी यूज करो, 20% इमोशन यूज करो. हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, ओवर अगर उसको डेटा 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 करोगे ना पागल हो जाएगा. Okay, so I'm happy to see the balance and delighted to see young people embracing change. Good work, Ding. I think you've got a great future. Yeah. So I just have one last thing to say. Yes, Guru. As Samir sir, I consider him one of my gurus of this business industry, and he has taught me that when we come to our business is going on for years, and then we come at a point at a stagnant stage. He taught me that 20% of your business growth is with your existing customers. This is what he's taught me, and I've been working on it. अब ये 20% ग्रोथ जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की, वो हमको मिलती कहाँ से? एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है कौन? तो वो हमारा डेटा ही तो है. Right. तो हमको अगर ग्रो करना है तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे वर्क करना है. एंड थैंक्स टू सर, ही taught me something very important, and I would like to pass it on to all of you all. So don't just always focus के न्यू कस्टमर्स आने चाहिए, ये है, मगर वो छोटी सी ग्रोथ भी पॉसिबल है, और वो डेटा जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है इस मामले में. बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है. A huge round of applause to our panel for today. Fantastic points, and I would request you all to step forward for a photo op.